Heavy police force has been deployed at the Dhari tunnel in Shimla ahead of the protest over the alleged illegal construction of the Sanjoli Mosque. Police officials are inspecting each vehicle to prevent any kind of mishap. The protests have been called by Hindu organization at around 11 a.m. today. Protests have been going on in the hill over the construction of the mosque. The controversially gained momentum earlier this month and after a heated exchange between the Congress leader Anirudh Singh and Harish Janarth in the Himachal Pradesh Assembly. The Janarth argued that there was no unrest in the region. Anirudh Singh Saif has said that the mosque has been built on the government land, adding that the matter has been sub judice for the last 14 years. On September 5th in Cecil, Hindu rights bodies along with the local residents have staged a protest at the Chaura Maidan in the Shimla in vicinity of the Vidhan Sabha and called for the demolition of the mosque in Sanjoli. Meanwhile, the Superintendent of Police of Shimla, Sanjeev Kumar, has spoken about the situation in the state. Let's now listen. देखें आप जो प्रोटेस्ट है वो अभी हमने जो हमारे प्रोसीजर्स है वो 163 BNSS में उसको इन्वोक किया है यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं लाइफ इज़ वेरी नॉर्मल, लोग अपने दफ्तरों में, स्कूलों में, कार्यालयों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एहतियातन तौर पे जो है वो पुलिस का पर्याप्त बंदोबस्त किया गया है। और हमने जो है पिछले शाम भी ये बताया था कि प्रोटेस्ट के लिए तो अभी कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जितना भी इस संदर्भ में प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए था वो अपॉर्चुनिटी सबको मिली है। और अभी हम ड्रोन से भी सर्विलेंस कर रहे हैं। अगर कोई लॉ को ब्रीच करता है तो वी विल कलेक्ट एडिक्वेट एविडेंस अगेंस्ट सच पीपल। ऐसे लोगों के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे। और साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा जो स्वभाव है, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों का हमारा स्वभाव है और हिमाचल में रहने वाले लोगों का स्वभाव है, वी आर पीसफुल पीपल, पीस लविंग पीपल। और किसी भी सोसाइटी का जो फैब्रिक होता है वो पीस पे ही रेस्ट करता है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के जो परिस्थिति है वो ये है कि अगर कुछ लोग इकट्ठा भी होते तो इट विल बी अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हमारी बात पहले हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो पीसफुली रहेगा। आई थिंक कि जो हमारे एहतियातन स्टेप्स है वो तो हम पर्याप्त हमने लेके रखे हुए हैं। और साथ साथ में अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी को देखना चाहता है और उस पर अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है तो उन लोगों को भी हम कॉशन करते हैं कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और पीस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। जो पीस है वही अल्टीमेट सॉल्यूशन है। अगर कोई डेमोन्स्ट्रेशन है तो वो भी पीसफुल होना चाहिए। यही मैं इस समय कहना चाहता हूँ। और हमारे पुलिस के बंदोबस्त जो है वो बिल्कुल एडिक्वेट हैं। वी विल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ और प्रोसीजर। All right, viewers, as we can understand at this given point of time, tensions continue in the Shimla region where alleged illegal mosque construction has sparked row, and Sanjoli Mosque row has now been the latest of the flashpoint where the allegedly illegal mosque has become the center stage of the controversy, where the heavy police deployment has also been made in Shimla ahead of the protest march over this illegal construction of the Sanjoli Mosque that has been called on Wednesday. As the police force has been deployed in the Dhali tunnel of the Shimla, the police officials are also inspecting each vehicle to prevent any kind of mishap and any untoward incident that might take place during the protest. The protests have been called by the Hindu organization at around 11 a.m. Today over the alleged illegal construction of the Sanjoli Mosque. All right, joining me right now is my colleague from Shimla at this given point of time. All right, let me cut across to Kameshwar. Kameshwar, good morning. How has been the situation at this point? अभी शिमला में संजौली मॉस्क को लेकर जो प्रोटेस्ट होने वाले हैं उसमें कितनी तादाद में लोग आने वाले हैं और पुलिस की क्या-क्या इसको लेकर तैयारियां हैं? जिस तरीके से जो सिचुएशन को देखा जा रहा है वो अभी सेंसिटिव है, प्रोटेस्ट का कॉल भी दिया हुआ है, एडिशनल पुलिस फोर्स भी डाल दी है, तो किस तरीके के बंदोबस्त बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, जो देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के जो अध्यक्ष रुमित है, उन्होंने कहा कि आज करीब 7,000 से लेकर 10,000 लोग यहाँ पर आक्रोश रैली निकालेंगे। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीते दिन ही जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने 163 धारा यहाँ पर लगा दी है। ऐसे में 5
व्यक्ति से अधिक कोई भी व्यक्ति यहाँ से एक साथ भी जा सकता है, साथ ही अपने साथ हथियार जैसे कि या कोई भी अपने साथ ले जा सकता है। वही यहाँ पर लगभग 1000 से अधिक जो पुलिस कर्मचारी है वो यहाँ पर तैनात है। बात करेंगे नवभार में भी जिस तरीके से पुलिस ने कड़ा पहरा लगाया है, जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए, चाहे हम संजौली की बात करें, लक्कर बाजार की बात करें, ढली की बात करें, और साथ ही जो ये धारा 163 है वो संजौली से लेकर चिलौंकी तक, आईजीएमसी से लेकर संजौली तक, संजौली से लेकर ढली तक सभी जगह लगा दी गई है। कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि अभी तक जो हमने धरने देखे हैं, खासकर संजौली में इसी स्थान पर 2 आक्रोश रैली निकाली गई है। इससे पहले अगर बात करें तो कसुम्पटी में भी अवैध मस्जिद को लेकर 2 बार धरना प्रदर्शन किया गया, और साथ ही अगर हम बात करेंगे अन्य जो विधानसभा सत्र के दौरान भी जो चौड़ा मैदान में भी आक्रोश रैली निकाली गई थी। फिलहाल मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस के अतिरिक्त जो जवान है यहाँ पर कड़े मुस्तैद कर दिए गए हैं, और यहाँ पर लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, जिसको लेकर भी यहाँ पर सामने जो जिला शिमला उपायुक्त खुद स्वयं यहाँ पर सड़क पर उतरे हैं, और आप देख सकते हैं कि बटालियन यहाँ पर अत्यधिक तैनात की गई है। अगर देखा जाए कुल मिलाकर जो 1000 जो पुलिस कर्मचारी है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जिला शिमला एसपी संजीव गांधी भी स्वयं मौके पर यहाँ पर उपस्थित है। वहीं मौके पर यहाँ पर जिला शिमला उपायुक्त, एसडीएम समेत अनेक आला अधिकारी भी उपस्थित है, और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि खास तरीके से यहाँ पर जो धारा लगाई गई इसका उल्लंघन कोई ना करे। उन्होंने सभी स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि जो कानून व्यवस्था को पालन करे और साथ ही यहाँ पर शांति बनाए रखे। वही बताना चाहेंगे, खासकर अगर हम बात करेंगे संजौली मस्जिद के, तो स्थानीय लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो ये मस्जिद है अवैध रूप से बनी है। पहले ये 2 मंजिला कच्चे मकान हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद यहाँ पर 2010 के बाद लगातार निरंतर प्रक्रिया रही और जो इसका निर्माण किया गया था वो अब ये बहुमंजिला इमारत बनकर तैयार हो चुकी है, 5 मंजिला बन चुकी है। और साथ ही ये 2010 के बाद ही यहाँ पर नगर निगम शिमला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी तक 35 नोटिस दे दिए गए थे कि इस जो भवन निर्माण कार्य को रोक दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो भवन का कार्य निरंतर लगातार जारी रहा। इसके साथ ही अभी तक 45 जो पेशियां हैं वो नगर निगम शिमला आयुक्त के पास हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं हुआ। अगर देखा जाए बीते दिन भी जो अगर हम देखते हैं सदन के दौरान भी यह मामला काफी उठा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब ये मामला बेहद अवैध तरीके सांप्रदायिक का हो गया, ऐसे में इसे जल्द से जल्द सुलझा दिया जाए, जिसका मद्देनजर रखते हुए 163 धारा बीते दिन लगा दी गई थी, जगह जगह पर पुलिस तैनात कर दी गई थी। और साथ ही जो अनिरुद्ध सिंह है उन्होंने निशाना रखते हुए कहा कि जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पहले इस मामले में बड़ी जोरों शोर से कहा था, लेकिन अब वो कहीं चुप है। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें कहीं मंत्री पद से हटाया जा रहा है, जिसके बाद वो इसमें चुप्पी साधे हुए है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी आड़े हाथ लुटे हुए कहा कि उन्होंने कहा कि जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि हमने 95% वाले हिंदू को हराया। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि जो संप्रदाय के है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि तो कांग्रेस है वो फैला रही है। वहीं अब जो मामला है, चाहे हम संजौली मस्जिद की बात करें, कसुम्पटी की बात करें, वहां भी जो स्थानीय निवासी और साथ ही जो कसुम्पटी की जो पार्षद है रचना शर्मा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वहां भी पहले एक भवन हुआ करता था। कुछ समय पहले देखा गया कि उस भवन को जो तब्दील कर दिया गया मस्जिद में, और साथ ही बड़ा तिरपाल लगाया गया, अंदर कंस्ट्रक्शन होती रही, जिसके चलते अब वहां भी विशाल जो धरना प्रदर्शन 2 दिन तक किया गया था। अब जो लोग अग्रसर हो चुके हैं, साथ ही जो हिंदू संगठन है वो एकत्रित होने के लिए आज उन्होंने आह्वान किया। फिलहाल 11 बजे यहाँ पर सभी ने हिंदू संगठन से आग्रह किया कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आए, लेकिन जिस तरीके से तो धारा 163 लगी है, ऐसे में कहीं ना तो कहीं पुलिस की जिस तरीके से जगह जगह पर पुलिस तैनात है चारों तरफ, चाहे हम संजौली की बात करें, आईजीएमसी की बात करें, नवभार की बात करें, तो जगह जगह पर पुलिस तैनात है। ऐसे में 5 व्यक्ति से अधिक कोई भी व्यक्ति आ जा नहीं सकता है। फिलहाल जो सख्ती है वहां पर इसीलिए की गई है ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखे। इसके साथ ही हम ये बताना चाहेंगे कि जो अन्य जो चाहे स्थानीय दुकान है या फिर ऑफिस है, कार्यालय है, निजी कार्यालय है या सरकारी कार्यालय, शिक्षा संस्थान है, ये खुले रहेंगे। और साथ ही इन क्षेत्र में लाउड स्पीकर का प्रयोग कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.